بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹ از اباؤٹ پیٹریوٹیزم، ٹھیک ہے۔ پیٹریوٹیزم کا ورڈ جو ہیں آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو پہلے سے، تو پیٹریوٹیزم کہتے ہیں حب الوطنی کو، یعنی لو فار دا کنٹری اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری یا لائلٹی ٹو ونس کنٹری۔ اپنے ملک کے ساتھ پیار محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے پیٹریوٹیزم، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اس کو حب الوطنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حب الوطنی یا وطن سے پیار، اس کو ہم کہتے ہیں پیٹریوٹیزم، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو جو ہیں وہ اسکرین شیئر کر کے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کر کے بھیج دیتا ہوں۔ جو ہم زوم پہ آئے ہوئے تھے تو وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، تو میں آپ کو پراپر جو اس کی ویڈیو شاید وہاں پہ آپ لوگ آواز سن پائے یا نہ پائے، تو یہاں سے میں آپ کو پراپر بنا کے بھیج رہا ہوں، یہاں سے آپ لوگ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے شیئر کر لیتا ہوں اسکرین، دین وی ول ڈسکس۔ تو ہمارا فرسٹ جو پیراگراف ہے، جس طرح ہم نے کیا تھا نا، فرسٹ یونٹ کیا تھا، تو اس میں کچھ ورڈس میننگس تھی، اور دین جو ہے پیراگراف تھا، اس پیراگراف کے اندر جو مشکل ورڈس ہیں وہ میں نے پہلے لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جو اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے ہی ہے یونٹ نمبر 2 میں۔ تو فرسٹ میں کچھ میننگس ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے۔ فار ایگزامپل فرسٹ ہے پیٹریوٹیزم، یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے۔ حب الوطنی، سیکریفائس، اس کا مطلب ہے قربانی دینا یا قربانی کرنا۔ مین کا مطلب ہونا، ٹھیک ہے۔ نیڈ ضرورت۔ مدر لینڈ مادر وطن، ٹھیک ہے، یعنی اپنا ملک۔ ارائز پیدا ہونا یا سامنے آنا، ٹھیک ہے۔ ڈیووشن کہتے ہیں وفاداری کو، ٹھیک ہے، وفاداری۔ لیٹن لاطینی زبان کو کہتے ہیں، جس طرح پاکستانی لینگویج اسی طرح لاطینی لینگویج، ٹھیک ہے۔ ون کوئی ایک شخص، یعنی یہ جو میننگس ہیں دے آر کنٹیکسٹ اسپیسیفک، ٹھیک ہے۔ اس کنٹیکس کے اندر، کیونکہ چونکہ یہ ہمیں پڑھائی اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ ٹرانسلیشن جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلے ہم میننگ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دے آر کنٹیکسٹ اسپیسیفک، اس کا مطلب کنٹیکسٹ اسپیسیفک کا مطلب یہ ہوتا ہے اس پیراگراف کے اندر جس میننگ میں یوز ہوئے ہیں اسی میننگ کو میں نے لکھا ہوا ہے۔ بات ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ونس کا مطلب کوئی ایک شخص یا ایک کو کہتے ہیں۔ کنٹری مین ہم وطن، ایک وطن کے لوگ، ٹھیک ہے۔ پیٹریوٹ کہتے ہیں محب وطن کو۔ کنسیڈر، اس کنسیڈر سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ولنگ، ول سے نکلا ہے مرضی، ایک ول ہوتا ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں اسکول جاؤں گا، آئی ول گو ٹو اسکول، ٹھیک ہے، وہ آکسیلری ورب۔ ایک مین پرنسپل ورب بھی ہے ول، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے رضا مندی، ٹھیک ہے، ولنگ، رضا مند۔ اسی طرح قابل تعریف، اس کا مطلب ہے کمنڈبل، کمنڈبل قابل تعریف، ٹھیک ہے، پریس ورتھی، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پیراگراف میں پڑھ لیتا ہوں، دین اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، لائن وائز اس کو ٹرانسلیٹ کرتے جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوا ہے فرسٹ پیراگراف۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے پیٹریوٹیزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری، ٹھیک ہے۔ حب الوطنی کے معنی مادر وطن سے محبت یا کسی شخص کے اپنے ملک سے وفاداری کے ہیں۔ یعنی حب الوطنی کا مطلب ہے، اپنے آسان کر کے اگر آپ کرنا چاہے، حب الوطنی کا مطلب اپنے وطن سے محبت اور لگاؤ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ A patriot loves his country. A patriot کیا ہوتا ہے؟ محب وطن، جو وطن سے پیار کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ A patriot loves his country، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، and is willing to، اور تیار ہوتا ہے کس کے لیے؟ to sacrifice، قربانی دینے کے لیے۔ when the need arises، تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پوری بات، ایک محب وطن اپنی وطن سے محبت کرتا ہے اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے آپ کو قربان کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ The word patriot
comes from the Latin word patriota. ठीक है, ये जो लफ्ज है पेट्रियोट, ये लातिनी जुबान के लफ्ज पेट्रियोटा से निकला है। ठीक है, पेट्रियोटा ऐसे ही लिखेंगे, जहां कर्सर लाके मैं किया हूँ ये वाला। ठीक है, पेट्रियोटा ऐसे ही उर्दू में आप लिख लेंगे। ठीक है, तो द वर्ड पेट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा। तो ये पेट्रियोट यानी हुब्ब वतन, मुहिब वतन का जो लफ्ज है वो लातिनी जुबान के लफ्ज पेट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब हम वतन है। ठीक है, कंट्रीमैन, हम वतन। इट इज कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, ये एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। ठीक है, क्वालिटी खूबी, कमेंडेबल काबिल तारीफ, कंसीडर समझी जाती है, तो ये एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड पैराग्राफ, व्हिच इज कुछ मीनिंग्स हैं वो डिस्कस करेंगे। देन हम जो है अगेन यूनिट की ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी यूनिट नहीं, पैराग्राफ की। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, करेज हौसला, ठीक है, सेफ गार्ड हिफाजत करना, वैल्यूज इकदार, इंटरेस्ट मफाद, ठीक है, कंप्रोमाइज समझौता, सोरेनिटी इक़्तिदार आला, रेंडर पेश करना, इंटीग्रिटी वहदत, प्रिजर्वेशन हिफाजत करना, ठीक है, ऑनर इज्जत व एहतराम, प्रोटेक्शन हिफाजत, टू सेव समथिंग, सुप्रीम आला बरतर, ठीक है, सबसे आला, अबव ऑल। तो ये थे मीनिंग्स कुछ जो इसके अंदर यूज हुए हैं पैराग्राफ 2 के अंदर। तो वी विल डिस्कस पैराग्राफ 2 व्हिच इज पेट्रियटिज्म गिव्स पीपल, यानी हुब्बुल वतनी लोगों को देती है क्या, द स्ट्रेंथ हिम्मत, ताकत, एंड करेज और हौसला, टू सेफ गार्ड टू बचाना क्या, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम की मफाद को बचाने की ताकत और हौसला देती है। ठीक है, या अता करती है। ठीक है, तो पूरी बात है हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और जुरात या हौसला अता करती है। ठीक है, इसी तरह सेकंड लाइन है, फॉर अ पेट्रियट द सोरेनिटी, ठीक है, एक मुहिब वतन के लिए मुल्क के इक़्तिदार आला, ठीक है, सबसे आला समझना, इंटीग्रिटी उसकी वहदत, ठीक है, एंड ऑनर और वतन की इज्जत, ऑफ द कंट्री, ठीक है, आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, ये बहुत बड़े इक़्तिदार होते हैं, बहुत बड़ी कीमत होती है, ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, इस पे किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। अब पूरी बात बता देता हूँ कि एक मुहिब वतन के लिए मुल्क के इक़्तिदार आला, एक बात वहदत और वकार, बरतर इक़्तिदार होते हैं, सबसे बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे अहम चीज होती है जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यानी अपने वतन की यूनिटी के लिए, अपने वतन को सबसे आला दिखाने के लिए, अपने वतन की तरक्की के लिए हम वक्त जो है कोशिश करता रहता है, इसके लिए किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकता एक मुहिब वतन। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट लाइन है, patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values। ठीक है, तो एक मुहिब वतन जो होता है वो इन इक़्तिदार को, इन वैल्यूज को कायम रखने के लिए क्या करता है, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पूरी बात करते हैं, मुहिब वतन इन इक़्तिदार को कायम रखते और इनकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं या कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ नंबर 2 जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स पैराग्राफ 3 को हम डिस्कस करके देखते हैं। तो उसमें कुछ मीनिंग्स लिखे गए हैं, तो मीनिंग्स पहले बता के देन जो है हम आगे चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेशन बिल्डर, नेशन बिल्डर का मतलब होता है मेमार कौम, एक कौम बनाने वाला। ठीक है,
कौम को तश्कील देने वाला, उसको कहते हैं नेशन बिल्डर। नेशन आपको पता है, कौम को कहते हैं बिल्डर, बिल्डिंग से बना है, बिल्ड बनाना से, ठीक है। तो नेशन बिल्डर, मेमार कौम, यानी एक कौम बनाने वाला शख्स। इसी तरह बाय सिक्योरिंग, सिक्योरिंग का मतलब होता है हासिल करके, बाय की वजह से करके लिखेंगे, बाय सिक्योरिंग हासिल करके, प्रोटेक्ट हिफाजत करना, सेपरेट अलहदा, ठीक है, अलहदा, कल्चर तहजीब, होमलैंड वतन, ठीक है, ट्रेडिशंस रवायात, ठीक है, असूल अपने जो वो होते हैं, इकदार होते हैं, वैल्यूज होते हैं, रस्म और रवाज होते हैं, ट्रेडिशन, डेवलप तरक्की देना, ठीक है, बढ़ाना या बढ़ना, सेंस एहसास, ठीक है, गैल्वेनाइज उभारना, ठीक है, आइडेंटिटी शिनाख्त, यूनाइटेड मुत्तहिद होना। तो ये थे पैराग्राफ 3 के अंदर कुछ मीनिंग्स जो बता दिए मैंने। तो अब हम पैराग्राफ 3 जो है उसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक कौम बनाने वाले थे या मेमार कौम थे, एक अजीम मेमार कौम थे। एंड अ ग्रेट पेट्रियोट, और एक अजीम मुहिब वतन भी थे, ठीक है। यानी कायद आजम एक कौम बनाने वाले थे और एक अजीम मुहिब वतन भी थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, ठीक है, वो जो है वो चाहते थे कि अपने मुल्क के इक़्तिदार को कायम रखा जा सके, कल्चर उसके सकाफत को कायम रखी जा सके, एंड ट्रेडिशंस और उसके रवायात को बरकरार रखा जा सके, ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट यानी पाकिस्तान बनने से पहले 3 मुल्क जो थे इनको मिला के सब कंटिनेंट का नाम दिया जाता था बरसगीर, ठीक है, उर्दू में कहते हैं बरसगीर, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो अब कायद आज़म जो है बरसगीर के अंदर मुसलमानों की रवायात, उनकी सकाफत, उनके इक़्तिदार को बचाने की हर वक्त कोशिश करते रहते थे, ठीक है, ये बात है इसमें। ही गेव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दिया क्या, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक पहचान दी, बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, एक अलग मुल्क बना के मुसलमानों को इनकी पहचान दे, ठीक है, इनकी अलग से शिनाख्त कराई दुनिया को, ठीक है। ही गिव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दिया अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान दिया, बाय सिक्योरिंग हासिल करके, सिक्योर हासिल करना, ठीक है, अ सेपरेट एक अलग मुल्क फॉर देम, उनके लिए, ठीक है। ही सेड, अब वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, इनकी कोटेशन है उनकी जुबानी, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो कहते हैं हमें हुब्बुल वतनी के जज्बा लोगों में पैदा करना है, विच गैल्वेनाइजेस, जो उभारता है क्या, अस ऑल, हम सबको, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, ठीक है। तो कहता है हमें हुब्बुल वतनी की सूझबूझ को बढ़ाना है, बढ़ावा देना है, किस लिए, जो हम सबको एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनाने के लिए उभारती है, ठीक है। तो हमें जब ये जज्बा दिया जाए हुब्बुल वतनी, हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाए हुब्बुल वतनी का, तो हम एक मुत्तहिद और एक ताकतवर कौम बन सकते हैं, ये उनके अल्फाज थे, ठीक है। तो ये था हमारा पैराग्राफ 3। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ 4 की तरफ, ठीक है। 4 में मैं कुछ मीनिंग्स अगेन मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द 4th पैराग्राफ अगेन। तो स्पिरिट, रूह या जज्बा, जज्बा को भी कहते हैं, रूह को भी कहते हैं, ठीक है। टू ले वंस लाइफ, अपनी जिंदगी कुर्बान करना, ठीक है। अलर्ट, चौंकना, तैयार रहना, ठीक है। डिफेंस, दिफा, ठीक है, हिफाजत। इन द वेक ऑफ, के नतीजे के तौर पर, ठीक है, नतीजे के तौर पर। या एटम, कोशिश, फौरन, गैर मुल्की, एम्बेरस, गले लगाना, ठीक है। इन्वेजन, यलगार या हमला,
ठीक है। मार्टरडम शहादत, इंस्टेंस मिसाल या वाक़े को कहते हैं। एवार्ड, ठीक है, नवाजना है, ठीक है, नवाजना नहीं है, यहाँ पे नवाजना लिखा है, नवाजना, ठीक है, ना लिखेंगे आप मीनिंग लिखते हुए, नवाजना, नून अलिफ करेंगे, ठीक है। तो अब देखें फोर्थ में पढ़ लेता हूँ, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, ठीक है, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। तो गैर मुल्की हमले के नतीजे में जज्बा हुब्बुल वतनी हमें तैयार रखती है, ठीक है। हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है ये हमें गैर मुल्की हमले के नतीजे में मदद करती है, ठीक है, ताकि हम वतन की हिफाजत कर सके। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे ऐसे वाकयात रोनमा हुए हैं, ठीक है। व्हेन पीपल लेट देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, तो लोगों ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इन द वॉर्स ऑफ 1965, जिस तरह 1965 की जंग थी, 1971 1971 की जंग थी, एंड द कारगिल वॉर, और कारगिल की जंग में मेनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइव्स, अपनी जानें कुर्बान की है, इन एन एटम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, तो अपनी वतन की हिफाजत के लिए 1965 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपनी जानें कुर्बान की है, ये पूरी बात है। कैप्टन मोहम्मद सरवर, अब इनके कुछ नाम हैं, जिस तरह आप ऐसे लिखेंगे कि कैप्टन मोहम्मद सरवर हैं, मेजर तुफेल मोहम्मद है, मेजर अजीज भट्टी है, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास है, मेजर मोहम्मद इकरम है, मेजर शब्बीर शरीफ है, सुवार मोहम्मद हुसैन है, लांस नाइक मोहम्मद महफूज है, कैप्टन कर्नल शेर खान है, एंड हवलदार लालिक जान। ऑल एम्बेरस्ड, तमाम ने क्या किया, एम्बेरस्ड मार्टरडम, उसका मतलब होता है शहादत हासिल की, वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, इन सारे लोगों ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया या जाम शहादत नोश फरमाया, ठीक है। Then all of them were awarded Nishan Haidar, the highest military award given to the great patriots who laid down their lives for the country. ठीक है, इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया, इसका मतलब ये है जो आला तरीन फौजी एजाज है, ठीक है, जो इन मुहिब्बान वतन को दिया जाता है, जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो ये जो सारे हमने नाम लिए, इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया, जो कि एक फौजी सबसे आला जो है एजाज है, जो मुहिब वतन लोगों को, जो लोग वतन के लिए जान कुर्बान करते हैं, इन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 4। अब हम मूव करते हैं 5 की तरफ, ठीक है। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो उसके भी मीनिंग से फीलिंग, एहसास को कहते हैं, गाइड रहनुमाई करना, लाइफ स्पिरिट जिंदा जोश वलवला, ठीक है, डिवाइड खाली होना, ठीक है, किसी चीज से खाली होना, एम्प्टी कंटिन्यूसली लगातार, ब्रेथ सांस लेने को ब्रेथ कहते हैं, BREATH ब्रेथ, इंस्पायर जोश पैदा करना, नेटिव लैंड अर्ज वतन अपना मुल्क, ठीक है, नेटिव लैंड। तो अब पढ़ लेते हैं 5 को। पेट्रियटिज्म यानी हुब्बुल वतनी, डियर फोर, इसीलिए इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा वलवला है, ठीक है, that continuously inspires and guides a nation, ये एक मुल्क को क्या करता है, हम वक्त तैयार रखता है कि वतन की खिदमत करे और वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर सके। अब पूरी बात कर लेते हैं कि इसीलिए आप इस तरह लिखेंगे, इसलिए या इसीलिए हुब्बुल वतनी
महज एक एहसास ही नहीं, ये एक जिंदा जोश व बलबला है जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता रहता है और इनकी रहनुमाई करता है। ठीक है, यानी ये जज्बा जब मौजूद होता है तो आप हर वक्त जो है आप वतन के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, यानी एस.डब्ल्यू. स्कॉट एक राइटर, इनके अल्फाज ये हैं, अ मैन डिवाइड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट इज लाइक द मैन हु, तो कहता है वो बंदा जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम है, यानी हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स ऐसा है। आप उसके अल्फाज बताएंगे, ब्रेथ्स दियर द मैन विद सोल सो डेथ, तो कहता है हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स ऐसा है जो बज़ाहिर सांस तो लेता हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन उसकी रूह इस कदर मुर्दा हो चुकी होती है। who never to himself had set का हेल्थ है, ठीक है, जिसने खुद से कभी ये नहीं कहा होता है क्या, दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड, ये मेरा अपना वतन है, ये मेरी अपनी अर्ज सरजमीन है। ठीक है, तो पूरी बात करते हैं कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स ऐसा है जो बज़ाहिर सांस लेता हो लेकिन अंदर से उसकी रूह इतनी मुर्दा हो चुकी होती है कि जिसने खुद से भी कभी ये नहीं कहा होता है कि ये मेरा वतन है और ये मेरी अर्ज सरजमीन है। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी पैराग्राफ 5 की, जो कि लास्ट हमारा पैराग्राफ था इस यूनिट का। तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। होपफुली आप लोगों को बात की समझ आई होगी, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों के साथ इसको भी शेयर कर लेता हूँ, इसमें से भी देख लेंगे। ठीक है, और जो भी बात ऐसी है कंफ्यूजिंग जिसको आप एक्सप्लेन चाहते हैं, जिसके लिए आपके पास सवाल हैं, तो कल जब क्लास होगी जूम में ऑनलाइन, तो उसमें फिर जो है आप सवाल जो है फर्स्ट 5 मिनट्स में आप लोगों को दूंगा, उसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, आपने होपफुली इससे पहले जो मैंने वर्क दिया है वो आप लोगों ने किया होगा, तो आज जो है इसका भी क्या करें, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो हैं, फर्स्ट 2, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ यूनिट पेट्रियोटिज्म, उसकी वर्ड्स मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट 2 यूनिट की वर्ड्स मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन लिखनी है, जो कि मैं आपको वर्कशीट पे भेज भी दूंगा। ठीक है, इसके साथ हम इस लेक्चर को एंड कर लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।